अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश सलीम। दोस्तों, इससे पहले भी हम एक सचक वैली पर एक्शन दे चुके हैं वीडियो पे। बहुत छोटी सी वीडियो थी, 3-1 मिनट की वीडियो थी और उसमें थोड़ा सा इलाके को दिखाया गया था और वो भी काफी खूबसूरत हमें लगा था। वैली थी काफी उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं दी। हाँ, मालूमात नहीं की। तो आप देखते हैं कि इसमें ये एक और सचक वैली, मेरे ख्याल टाइटल में तो यही लिखा हुआ है। हमने गूगल पे सर्च किया है इसका मतलब जानने के लिए, तो आगे से सचक वैली लिखा हुआ है। तो अगर नहीं है तो फिर भी आप हमें बता दें, क्योंकि टाइटल हमें बांग्लादेशी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि सचक वैली ही होगी, क्योंकि गूगल पे भी वही लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या नहीं दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पर आपको रिव्यू देते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच रहे। হাই, আজ যাচ্ছি আমার খুব পছন্দের একটা জায়গায়, যে জায়গার নাম হচ্ছে মারাইতং। মারাইতং ঠিক আমার পেছনে অবস্থিত। আর এই জায়গার নাম যেমন সুন্দর, এই পাহাড়ের চূড়াও খুবই সুন্দর, কিন্তু এর চূড়ায় ওঠাটা একটু কষ্টকর। এবার বলে দিই এখানে কিভাবে আসবেন। এখানে আসার জন্য চট্টগ্রাম কক্সবাজার হাইওয়েতে আপনাকে নামতে হবে চকরিয়া বাস স্ট্যান্ডে। আর চকরিয়া বাস স্ট্যান্ড নেমে ওখানে কিছু চাঁদের গাড়ি পাওয়া যায়, যে গাড়িগুলি আলীকদম আসে, ওই গাড়ি করে চলে আসবেন আবাসিক। নেমে খাওয়া দাওয়া করবেন, খাওয়া দাওয়া করে তারপর আপনার ট্রেক শুরু। মারাইতংয়ের চূড়ায় যাওয়ার বলা যায় সবশেষ পাড়া। এই ট্রেইলের আমরা এখন একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে আছি। আর এখানে একটা পাড়া আছে, মুরুং পাড়া বলা হয়। ওদের কাছে রিকোয়েস্ট করলে হয়তো কিছু পানি পেতে পারেন, তবে উপরে কোনো পানির সোর্স নেই। সো যদি পানি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে এখান থেকে খেয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেটার। আর সাথে অবশ্যই রিজার্ভ পানি নিয়ে যাবেন চূড়াতে তুলে। এদের সাথে দারুণ কিছু সময় যাচ্ছে। ওরা কি বলছে আমিও জানি না, আমি কি বলছি ওরা হয়তো বলতেছে না। আর সবাই মুরুং ছেলে মেয়েরা, বাট সবগুলি অসাধারণ, সুন্দর আর খুব হাসি খুশি সবাই। প্রথমেই বলেছিলাম মারাইতং পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার ট্রেল কষ্টকর। এবার বলি কেন। নর্মালি হয় কি, আমরা যখন পাহাড়ি কোনো ট্রেল দিয়ে হাঁটি তখন দেখা যায় ওই ট্রেলে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মারাইতং পুরোপুরি ডিফারেন্ট। এখানে একদম স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে চূড়া পর্যন্ত পুরোটাই আপ ট্রেল। তো এটাই হচ্ছে এই পাহাড়ে ওঠার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অপশন, চ্যালেঞ্জিং টাইম।
এর চূড়ায় আছি এখন। যেটা বলেছিলাম, উঠে আসাটা আসলেই কষ্টকর, অনেক লম্বা ট্রেল, সময় লাগবে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা বা আরেকটু বেশি, 2.5-3 ঘন্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। এখানে পৌঁছে এখন আমরা টেন্ট পিচ করব। আর এখানে এসে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, সেটা হলো মারাইতংয়ের চূড়ায় এখন অনেক পর্যটক আসেন। ইভেন আমরা এখন এসে উঠেছি, এখানে অলরেডি বেশ কয়েকটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা আসার সময় কিন্তু আরও কয়েকটা গ্রুপকে দেখেছি যাদেরকে আমরা ক্রস করে এসেছি। সো এটা বলা যায় যে মারাইতং এখন মোটামুটি ফেমাস একটা জায়গা, বিশেষ করে ট্রেকিংয়ের জন্য। এবং এই পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রকৃতি দেখে আপনি নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হবেন। রাতের 1টা বাজে, টেন্টে এসেছি ঘুমাতে। আজকের রাত অনেক মজা করলাম, আর রাতে বারবিকিউ করেছি, সবাই মিলে গান করলাম, পাহাড়ে শুয়ে শুয়ে তারা দেখলাম, আর আকাশে আবার পূর্ণিমার চাঁদও আছে। তো সব কিছু মিলে দারুণ একটা রাত কাটাচ্ছি, আর এখন ঘুমের পালা। গুড মর্নিং গাইজ। মারাইতংয়ের সূর্যাস্ত যেমন সুন্দর, তেমনি সূর্যোদয়ও অসাধারণ। আর এখানে অনেক ঠান্ডা, যার কারণে আমি একটা জ্যাকেট পরে আছি। সো এখানে আসার সময় এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন, এখানে রাতের বেলা কিন্তু অনেক ঠান্ডা হয়। সো ইউ হ্যাভ টু টেক এ জ্যাকেট। वीडियो हमने देख ली है और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई गई है और साथ साथ बता रहा था, बांग्लादेशी लैंग्वेज में बता रहा था। बिल्कुल। तो उस जगह कैसे नाम लेके है, लेकिन हाँ नाम तो हम पढ़ नहीं सके, वो भी गूगल पे सर्च किए है और फिर हमें पता चलता है कि सिद्रक वैली के बारे में वीडियो है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, पहले भी जो उसका ड्रोन व्यू देख चुके हैं, तो ऊपर से काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। पूरी वैली का इसने नहीं घुमाया, सिर्फ 1-2-4 घरों में गया जो कबीले में थे वहाँ पे काफी छोटे बच्चे थे, उनके साथ इनसे वीडियो बनाई है, उनके रहन सहन का तरीका दिखाया है, अपने कैंप के हवाले से दिखाया है, कैंप के हवाले से बताया है। ये तकरीबन कोई 12-14 आदमियों का ग्रुप गया हुआ था जो वैसे सैर के लिए गए हुए थे जी। और ये गालिबन सबसे ऊंची जगह पर ये हाँ, काफी जबरदस्त मंजर पेश कर रहे थे, बादल वगैरह, और काफी खूबसूरत जगह है। सरदार बहुत सरसब्जा बहुत है, बिल्कुल काफी सरसब्जा पहाड़ी इलाका भी था, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी थी उधर, सरसब्जा भी काफी ज्यादा था और काफी जबरदस्त। हमें तो वीडियो काफी पसंद आई है और साथ में ये बता भी रहा था, इंफॉर्मेशन भी दे रहा था बांग्लादेशी लैंग्वेज में, और भी बहुत कुछ। इसने ड्रोन व्यू नहीं था, लेकिन ये है कि इसने मुकम्मल जो वीडियो है एक अपनी तरफ से बनाई है, जो क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में ड्रोन नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त ये भी वीडियो बनाई गई है, काफ़ी हमें अच्छी लगी है
और ये है कि वहाँ हमें नहीं पता चला कि वहाँ पे कोई होटल वगैरह है कि नहीं है, और रहने सहने के लिए या सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए लोग जाते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, क्योंकि और हमें तो नहीं पता कोई ऐसी जगह को दिखाई भी नहीं है ऐसी जगह। हाँ, सिर्फ 2-3 जगह दिखाई है जी। तो दोस्तों वैसे ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, हमें तो काफ़ी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।